Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to start with the topic cans and end used in carbonated soft drinks. So, today we will going to study about cans. In the previous lecture, we have talked about the PET bottles. We have also talked about the glass bottles, how the carbonated soft drinks are filled in PET bottles, how they are filled in glass bottles. We have also discussed the packaging materials that are used in glass bottles. We have also discussed the benefits and application of glass bottles. Even we have also discussed about the application and benefits of PET bottles, why PET bottles are recommended in the manufacturing of carbonated beverage industry, why they are known as the best packaging materials to package any carbonated soft drinks. So today we will going to study the third packaging material, and that is cans. So cans, it is what is it can and why they are used as a packaging material in soft drinks. So let's get started with the topic. So what are beverage can? The first heading says कि beverage cans क्या होता है. तो जो beverage can or a drink can is a metal container manufactured to hold a single serving portion of liquid such as alcoholic drinks, carbonated soft drinks, fruit juices, energy drinks, teas and herbal teas, etc. Cans are originally designed for food preservation rather than soft drinks and were the result of the competition in 1810 for which Napoleon offered a prize to develop a package for that purpose. Cans used before 1900 were manually produced in three parts: a cylindrical body and two ends, and joint were made and sealed by dipping parts in hot solder. So द फर्स्ट हेडिंग सेज कि बेवरेज कैंस क्या होते हैं. तो बेवरेज कैंस को हम लोग ड्रिंक कैंस भी कहते हैं. ये एक मेटल का कंटेनर होता है जो कि मैन्युफैक्चर हुआ है जस्ट टू होल्ड अ सिंगल सर्विंग ऑफ लिक्विड. मतलब कि एक बेवरेज कैन मैन्युफैक्चर हुआ है कि उसमें आप जो भी आपकी बेवरेज है, whether it is a carbonated beverage, whether it is a fruit juice, whether it is a vegetable juice, तो उस कंटेनर में या उस कैन में उस बेवरेज को स्टोर करने के लिए दिस बेवरेज कैन इज मैन्युफैक्चर्ड. अगर हम बात करें एशियन टाइम्स की, तो जो कैंस फर्स्टली ओरिजिनेट हुए थे वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए ही डिज़ाइन हुए थे, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड दे आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स. अगर हम बात करें एशिया और यूरोप की, तो वहाँ पर जो कैंस हैं वो फर्स्टली हमारे एलॉय से बने थे. दैट इज़ 55% स्टील थी एंड 45% एल्यूमिनियम थी. बट अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट की, तो वहाँ पर 100% जो कैन है इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. सो अगर कैन की बात करें तो कैंस थ्री पार्ट्स में मैन्युफैक्चर्ड किया गया है. द फर्स्ट पार्ट इज सिलेंड्रिकल बॉडी, सेकेंड उसका जो टू एंड्स हैं और जो जॉइंट्स हैं, और ये हमारा एक डिपिंग से सील्ड हुआ है और एक होल्ड शोल्डर में. सो दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ बेवरेज कैन. अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, अगर बेवरेज कैन की हिस्ट्री की बात करें तो जो अर्ली डेज़ के मेटल बेवरेज कैंस थे वो स्टील से बने थे, सिमिलर टू दैट इज़ टिन. और उसमें कोई जैसे हम लोग अगर कैन को देखते हैं तो उसमें एक पुल टैब होता है, बट अगर अर्ली डेज़ में देखें तो उसमें कोई पुल टैब नहीं होता था. तो दिस इज़ अबाउट द बेवरेज कैन. नाउ मूविंग टू व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेवरेज कैन. सो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे एक कैन है जिसका स्ट्रक्चर इज शोन. तो लेट्स सी व्हाट इज़
the structure of beverage can. So a standard beverage can is made up of two sections that arrive empty and separately to a bottling company, the can body and the can end. Can body are typically constructed from a single piece of aluminium or steel drawn into a cup, punched and ironed into a simple can body. A can body is then necked, which means that the top portion is trimmed to a smaller diameter. So इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है कैन का वो कैसे बना होता है. सो अगर एक स्टैंडर्ड कैन की बात करें तो इसमें दो सेक्शन होते हैं. फर्स्ट इज कैन बॉडी एंड सेकेंड इज द कैन एंड. अगर आप देखो तो दिस पार्ट इज जहाँ पर लेबलिंग है बॉडी, तो दिस पार्ट इज द कैन बॉडी और नीचे के साइड देखेंगे तो कैन का एंड है. सो जो कैन की बॉडी है ये एल्यूमिनियम से भी बनी होती है और ये समटाइम्स स्टील से भी बनी होती है, या आप कह सकते हो कि ये दोनों चीज़ों से बनी होती है. जैसे अभी हम लोगों ने स्लाइड 1 में बात करी कि जो हमारी कैन बॉडी है, अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो वहाँ पर 55 एंड 45 का रेशियो है कैन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. बट अगर हम यूके की बात करें, यूएस की बात करें, तो जो कैन क्या है, जो उसकी कैन की बॉडी है ये 100% हमारी उससे एल्यूमिनियम से बनी है. सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर. सो जो यहाँ पर कैन की बॉडी है दो वो सेक्शन में डिवाइड हुई है, कैन बॉडी एंड कैन एंड. जो इसकी बॉडी है ये हमारी एल्यूमिनियम से या स्टील से बनी है, डिपेंडिंग कि वो किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है. और जो कैन की बॉडी है इज़ देन नेक्ड, विच मीन्स दैट जो हमारा टॉप पोर्शन है, अगर आप देखो जहाँ पर नेक पोर्शन है, इसको ट्रिम किया गया है, इसको ट्रिम करते हैं. देन कम्स द कैन एंड ऑल्सो नोन एज लिड. जो कैन का एंड है जिसको हम लोग लिड्स भी कहते हैं ऑफ अ बेवरेज कैन, आर ऑलवेज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय. तो जो हमारा कैन का जो एंड है, ठीक, उसको हम लोग लिड भी कहते हैं और ये किससे बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय से. एंड प्रेस्ड फ्रॉम अ स्लाइटली मोर सब्सटेंशियल एंड थिकर मिक्स ऑफ एल्यूमिनियम देन कैन बॉडी, एंड द पुल टैप्स ऑन द कैन एंड्स आर प्रेस्ड ऑन सेपरेटली. तो जो कैन का हमारा बॉडी है ये एल्यूमिनियम से बनी हुई है और जो कैन की जो लिड है ये भी एल्यूमिनियम एलॉय से बनी हुई है. द रीज़न इज़ कि जो हमारी कैन की बॉडी है, जो कैन का हमारी बॉडी है ये थोड़ा सा इतनी थिकर नहीं होती है जितनी आपकी लिड होती है. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ सिंपल कि हमारा जो कैन की बॉडी है उसको आप अपने हैंड से क्रश कर देते हो और जो इसकी लिड है वो इसलिए टाइटली होती है क्योंकि उसमें CO2 अंदर है. ठीक है, अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करें तो उसके अंदर CO2 है. CO2 एक प्रेशर डालेगी, अगर मटेरियल वहाँ पर थिनर होगा तो ऑब्वियसली वो लीक कर जाएगा. ठीक है, इसीलिए जो हमारा लिड है कि आपका मटेरियल सेफ रहे, तो इसलिए हमारा जो लिड पार्ट है वो थिकर होता है. So although all beverage can now have two pieces, body and end, this was not always the case. Drink can be made up of three components: a top, a bottom, and a rolled soled or wrinkled cylindrical. Now comes what are beverage can made up of. अगर हम इसके रॉ मटेरियल्स की बात करें कि बेवरेज कैन हमारा किन मटेरियल से बना हुआ है, तो बेवरेज कैन एज डिस्कस्ड एल्यूमिनियम से बना. जैसे डिस्कस किया था कि इन द यूनाइटेड स्टेट द कैन इज़ मोस्ट ऑफन मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ एल्यूमिनियम. स्टिल कैन्स मेड इन एशिया एंड यूरोप अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ एल्यूमिनियम and 55% of steel. Today, soft drinks cans are made in two pieces. The drawn and wall iron process, which can be continued developed since 1960s. They come in three traditional sizes in the UK, that is 330 ml,
250 ml and 150 ml used on aircraft. So जो हमारी बेवरेज की कैंस हैं, तो इनका जो अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल्स ऑफ द एल्यूमिनियम बेवरेज कैन इज़ ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम. ये एल्यूमिनियम है. और एल्यूमिनियम कहाँ से डिराइव हुआ है? एक और है जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्साइट, उससे एल्यूमिनियम इज़ डिराइव. सो एल्यूमिनियम इज़ डिराइव फ्रॉम विच ओर? तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट. अगर मैं यूएस एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर की बात करूं तो वो इंपोर्ट करते हैं बॉक्साइट को. जो बॉक्साइट है ये है क्या वैसे? दिस इज़ अ ओर. तो बॉक्साइट इज़ एक रिफाइंड है और इसको इसको रिफाइन करते हैं और इसको स्मेल्टेड कर देते हैं. जैसे इसको स्मेल्ट करते हैं तो इसमें मोल्टन एल्यूमिनियम कास्ट हो जाता है. तो जो एल्यूमिनियम का बेस है, द एल्यूमिनियम बेस है जो कि बेवरेज कैंस के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, वो वहाँ से मैन्युफैक्चर हो गया. और स्मॉल अमाउंट ऑफ जो अदर मेटल्स हैं वो भी यूज़ होते हैं. ऐसा नहीं है कि 110% आपका एल्यूमिनियम ही यूज़ करेंगे, नहीं. तो अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं बेवरेज कैन की, तो मेजर पार्ट इज़ एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल 1% हम लोगों ने मैग्नीज डाल दिया, 1% आपकी मैग्नीशियम है, 0.4% सिर्फ आयरन है, 0.2% सिलिकॉन है और 0.15% आपकी कॉपर है. बट जो लार्जर पोर्शन है वो आपकी एल्यूमिनियम है. अब एक क्वेश्चन बच्चों जनरली ये अराइज होता है, व्हाई एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड? इतना लार्ज पोर्शन एल्यूमिनियम का ही क्यों यूज़ किया? क्यों नहीं हम लोग और मेटल्स का यूज़ करते हैं? द रीज़न इज़ जो एल्यूमिनियम है वो एक रिसाइकल्ड मटेरियल है. अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो जो अमेरिका में 25% जो एल्यूमिनियम है वो आपका रिसाइकल्ड हो जाता है. और वो कहाँ से रिसाइकल्ड होता है? आपकी बेवरेज इंडस्ट्री जो है, इट इज़ दी हब ऑफ एल्यूमिनियम कैंस फॉर रिसाइकलिंग. सो द एनर्जी आपकी सर्विंग है जो आपकी यूज्ड होती है, तो इट कम्स फ्रॉम recycling. So this is the reason why aluminum can is used. Now comes how to make a canned beverage. अब कैनिंग कैसे होती है, मतलब जो आपका कैन है ये कैसे बनता है? तो लेट्स सी. मैन्युफैक्चरिंग में बेवरेज कैंस can usually take place in two facilities. The first one is where the body and the lid of the can are made. Then the component get transferred to the other where the filling process occur. Can process making. Step 1. Cut the blank. The process start with 30 inch, that is 76 centimeter thick aluminum ingot rolled into a thin sheet. The first step is in the actual cutting in the actual making can include cutting the sheet into a circle known as a blank that will shape the bottom and the side of the can. After the circular blank is cut, it is drawn or pulled into a cup with a diameter of around 3.5 inches, that is 8.9 centimeter. तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो जो मॉडर्न मेथड है ऑफ मेकिंग एल्यूमिनियम कैन, तो वहाँ पर हम करते हैं, उसको हम कहते हैं 2 पीस ड्राइंग एंड अ वॉल आयनिंग. मतलब जो प्रोसेस है उसमें आपका 76 मीटर जो एल्यूमिनियम इंगॉट जो थिक होता है उसको हम थिन शीट में रोल करते हैं. ठीक है. अब जैसे ही हमने लोगों ने थिन शीट में उसको रोल कर दिया, क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप है, फिर उस शीट को हम लोग कट करते हैं इनटू अ सर्कल जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक. और वो ब्लैंक से दैट विल फॉर्म, अब उस ब्लैंक से जो हमारा बॉटम और साइड जो कैन की होती है, जो बॉटम होता है कैन का और जो साइड होती है वो मैन्युफैक्चर होती है. हर एक ब्लैंक कितने इंचेस का होता है? 5.5 इंचेस का होता है. दैट इज़ टोटल 14 सेंटीमीटर डायामीटर होता है. सम मटेरियल्स ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लॉस्ट हो जाते हैं, तो अबाउट 12 to
14% ऑफ द शीट इज़ वेस्टेड. क्यों? क्योंकि ड्राइंग में, राइट, बट कैन बी reused as scrap. तो आफ्टर द सर्कुलर ब्लैंक इज कट, इट इज़ drawn and pulled into 3.5 inches, that is 8.9 centimeter in diameter. अब next step is, this is how the can manufacturing take place. Now the second step is redraw the cut. तो redraw the cut में क्या है? After that the small cup resulting from the first step is moved to a second machine. A sleeve secure the cup in place and the punch lowered quickly into the cup. Redraw it around 2.5 inches in diameter, that is 6.6. The cup height rises from 1.3 inches to 2.25 inches. Next, the punch presses the cup against 3 ironing wings which stretch and the thin cup walls. The entire operation, that is drawing and ironing, is completed in a single continuous punch stroke that take less than a fifth of second, 5 second. The cup is around 5 inches tall at this stage. So आपका जो सेकेंड स्टेप है, दिस इज़ नोन एज रीड्रॉ द कट. रीड्रॉ द कट में क्या होता है कि हमारा एक 2 स्मॉल कप रिजल्टिंग फ्रॉम द जो हम लोगों ने इनिशियली ड्रॉ किया, उससे 2 स्मॉल कप्स हमारे निकल के आते हैं, रिजल्ट होते हैं. अब जो स्लीव होती है वो क्या करती, वो कप को होल्ड कर देती है एक प्लेस में, और पंच हम लोग स्निफली लोअर एंड से उसको प्रेस करते रहते हैं. देन कम्स द ट्रिमिंग द एयर. Then the can is slightly wavy at the top due to drawing and ironing process. These tiny ripple in the metal are referred as air. Earring is inevitable result of aluminium sheet crystalline structure. तो जो उसका टॉप होता है वो ड्यू टू ironing process वो थोड़ा सा वेवी होता है. Then comes step 4, that is clean. Since the drawing and ironing process leaves the can outer wall smooth and polished, it does not need any additional finishing such as polishing. After trimming the ears, the can is washed and dried to eliminate any potential dust or particles. Now the step 4 says cleaning. Since अब क्लीनिंग से ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैन की क्लीनिंग करते हैं. क्लीनिंग कैसे कि जो आयनिंग है, जो हम लोगों ने आयनिंग करी है, ड्राइंग करी है, तो उसके वजह से जो उसका आउटर सरफेस होता है कैन की वॉल का वो स्मूथ हो जाता है, साथ ही साथ वो शाइनी सरफेस होता है. तो इसके लिए इसको कोई एक्स्ट्रा फिनिशिंग की या पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट जैसे ही हम एयर की ट्रिम करते हैं, जो कैन होता है उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर हम लोगों को प्रिंटिंग करनी होती है, जो लेबलिंग करनी होती है वो उसके वजह से. जैसे ही हम आफ्टर द कैन इज decorated, it is squeezed slightly at the top to make a neck, और जो neck is given an outward flange at the very top edge which can be folded over once the lid is added. अब लास्ट है, फिफ्थ स्टेप इज इंटरनल कोटर. A protective, especially compound coating is applied to the inside of the can. After the internal coating, the can through a funnel, oven, bakers and cures inside the coating. After that, it gets slightly squeezed at the top to form a neck. The neck is then given outward fledge at the top edge, which will fold over until the lid is attached. Now the last is lid making. The can internal bulge help
it to withstand the pressure exerted by the liquid inside, but the flat cap, which must be stiffer and stronger than the base, is made up of aluminium with more manganese and less with more magnesium and less manganese than the rest of the can. As the result, the material is more substantial and the lid is much thicker than the wall. The last step is lid making. तो जो कैन है उसके जो इंटरनल है, इंटरनली वो बल्ज रहता है. वाई? क्योंकि उस जो लिक्विड है अंदर से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, तो ऑब्वियसली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हमारी क्या होगी, CO2 का कंटेंट होगा. CO2 क्या है? एक गैस है. और वो गैस क्या कर रही है? वो एक प्रेशर दे रही है. किस पे प्रेशर दे रही है? जो कैंस के वॉल है उस पर एक एग्जर्ट कर रही है इंटरनल प्रेशर. तो इसलिए हमको वो थोड़ा बल्जी बनाना होता है. सिमिलरली जो उसका बेस है, जो उसकी लिड पोर्शन है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारा जो कैन है उससे प्रोडक्ट हमारा बाहर ना लीक ना हो जाए, क्योंकि उसका प्रेशर को विदस्टैंड कर सके. इसीलिए इसमें हम लोग एल्यूमिनियम के साथ साथ मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और मैग्नीज का यूज़ थोड़ा कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम. तो इस तरीके से हमारी लिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी how the can beverage is made. So what are the different steps? Cut the blank. Second is redraw the cut. Third is trim the air. Fourth is clean. Fifth is internal coater, and the last one is lid making. So these first 6 step is used in manufacturing of any beverage can. अब बेवरेज कैन आपका बन गया तो उससे कुछ बाय प्रोडक्ट और वेस्ट भी होता होगा. ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें क्या है, उसमें ऑब्वियसली कुछ हमारा वेस्ट भी निकलता है. तो जैसे एल्यूमिनियम है तो सम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है? जैसे अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ, जहाँ पर आप ब्लैंक्स बनाते हो, व्हेन द ब्लैंक्स आर कट एंड द एयर आर ट्रिम्स, ठीक है, तो वहाँ पर आपका मटेरियल लॉस्ट होता है. कौन सा मटेरियल? एल्यूमिनियम का. फिर आप क्या करते हो, जो कैंस है जब इसको हम लोग यूज्ड होता है और ये जब कस्टमर इसको डिस्कार्ड कर देता है तो इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया. So these saving from recycling are quite sufficient to the industry. A major expense beverage can का कहाँ पर हुआ है? is to produce aluminium. सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में होता है. बट जैसे ही उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, मतलब 95% ऑफ एनर्जी जो कॉस्ट करती है रिसाइकलिंग की, वो आपको सेव हो जाती है. सो जो कैन प्रोड्यूसर हैं वो ट्राई करते हैं कि कंट्रोल करें जो भी वेस्ट है बाय डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्गर कैन शीट, सो दैट क्योंकि लेस एल्यूमिनियम आपकी लॉस हो. दिस इज़ द टेक्निक दैट इज़ यूज्ड बाय द बेवरेज इंडस्ट्री. जो लिड है कैन का इज़ of the smaller diameter than the wall in order to conserve the amount of aluminum. तो जो उसका lid portion है उसका जो मतलब कि diameter है वो कम होता है as compared to walls obviously. सो न्यू कैन अगर हम देखा जाए तो 1993 में एक न्यू कैन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें जो लिड है उसकी 1/4 इंच स्मॉलर डायामीटर है देन दी कैन बॉडी. तो this is about how cans are made and what are the byproducts and what are the this waste material that came out of the can. Generally there are certain questions that can be asked in the exam, so let's discuss that questions. So they can ask you about what are the beverage can क्या होता है, what are the materials or you can say raw materials that are used in the manufacturing of beverage can. तो कौन से raw material है? एल्यूमिनियम, स्टील, मैग्नीज, मैग्नीशियम,
small percentage of iron, that is 0.4%. Sometimes they use copper also, right? So these are certain raw materials that are used in the manufacturing of beverage can. Then comes, they can also ask you about the structure of the beverage can. Explain the structure of the beverage can. So you have to draw this diagram of the can with the labeling, and you have to explain the structure of the can. They can ask you what are the beverage can made up of, about the raw materials. beverage can किन किन रॉ मटेरियल से बना हुआ है, दे कैन आस्क यू अबाउट दिस ऑल्सो. तो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ टू मेक अ कैन बेवरेज. कैन बेवरेज आप कैसे बना सकते हो, ठीक है. तो देर आर सिंपली 5-6 स्टेप यू हैव टू टेल, राइट, कि इन स्टेप से आप अपनी कैन के बेवरेज की जो कैन है इसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो. नाउ दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. Why aluminium is used? What is the use of aluminium? Why? Because aluminium can easily recycled, इसलिए आप एल्यूमिनियम का यूज़ करते हो. एंड वाई वी ऑलवेज यूज़ द बेवरेज कैन. बेवरेज कैन क्यों यूज़ करते हैं? वाई? बिकॉज इसमें सबसे पहले तो इसमें मेटल जो यूज़ हुआ है एल्यूमिनियम, उसको रिसाइकल कर सकते हैं. दे आर लाइट वेटेड, ईजली पोर्टेबल है. आपका जो प्रोडक्ट है उसको हार्मफुल सनलाइट से, एयर से, सबसे इस बचाता है. तो दैट इज़ द रीज़न हम कैन्स को यूज़ करते हैं. एक क्वेश्चन आता है, हाउ आर कैन एंड्स मेड अप ऑफ. जो कैन के एंड्स हैं वो किससे बने होते हैं? तो जो कैन के एंड्स होते हैं, जिसको हम लोग लिड्स भी कहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ aluminium alloy, or they are pressed from slightly more substantial and thicker mix of aluminium than the can body. They can even ask you about why जो उसकी जो कैन की बॉडी है इज़ थिनर देन द कैन की जो लिड है. तो these are certain questions that can be asked in the exams. So I hope students you have understood the lecture. Please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. Please you can also subscribe our channel to get latest videos on the various topic. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.